Guys, we are back with a new video of fundamental rights, carrying forward our previous concept. So here we have to discuss article 19. Article 19 provides us rights of freedom. Okay, rights of freedom. Here we have six rights of freedom. 19 sub clause 1 sub clause A. Now here guys, we have to remember one thing, that I have written small a. If you will write capital A, then it will be carried forward by deducting your marks, because small a is here. So guys, please concentrate. 19 sub clause 1 sub clause small a. So it gives us freedom of speech and expression. Second, 19 sub clause 1 sub clause B, it gives us freedom of assembly, guys. Please speak before me, so that you will remember at the end of the video. You are able to recreate and reproduce this. It will be of very help. Okay guys, 19 sub clause 1 sub clause C, it calls for freedom of association. Here just add one thing, that what ki cooperative sector, so cooperative society was added in what was added through which amendment to the constitution? It is 97th CA 2013. Okay guys, nice. Okay, here you have to remember this cooperative society added in 19 sub clause 1 sub clause 3 accordingly with 97 CA 2013. Okay guys, then we have to shift our 19 sub clause 1 sub clause D. Here we have freedom of movement. In the territory of India only it is concerned. Okay, in the territory of India only it is concerned. 19 sub clause 1 sub clause A, freedom of residence. Nineteen sub clause 1 sub clause F, here is freedom of property. Which was repelled, so it was repealed through 44th CA 1978. Okay guys, and here just remember one thing, that 19 sub clause 1 sub clause F से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि F मतलब फेंक दिया, राइट? मतलब ये हमने फेंक दिया, रिपेल्ट हमने ख़त्म कर दिया, फेंक दिया। F मतलब फेंक दिया, F से फेंक दिया। क्या करा हमने? 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट से फेंक दिया, रिपेल्ट ख़त्म कर दिया हमने। सो गाइज रिमेंबर इट एंड डिसाइड बिफोर मी। 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F वो फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी रिपेल्ड, वो हमने रिपेल कर दिया, फेंक दिया F से। ओके गाइज, इट इज़ वेरी टू रिमेंबर, F से फेंक दिया, निकाल दिया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकाल दिया। फिर 19, देन नेक्स्ट 19 sub clause 1 sub clause G calls for freedom of profession. What we calls for freedom of profession. Now guys, these are the rights which are provided under article 19. Okay guys, now one may wonder that the freedom of profession is there, so they can be engaged in a profession like murder, honor killing, etc, है ना, extraction, but extradition, but what? Guess what? Ki upon these rights some reasonable restrictions are also there. Guys, speak before me. Reasonable restriction. So reasonable restriction are also there. Reasonable restriction are also provided. Provided.
like was in 19 subclause 1. Recently India got latent show was produced, and accordingly Supreme Court judgment came. So they are the freedom of speech and expression must be curtailed. Okay, because due to our Indian society standards, we are not inclined towards western society. So here it is, and now I will discuss like in detail. Okay guys, now in detail we will discuss. So here 19 subclause 1 subclause A. Here it is. Every guys speak before me. Speak before me, guys. It is very important due to multiple SC judgment came recently due to that show. So every citizen has freedom to express his views, opinion, belief by word. Speak guys before me. Word, writing, printing, painting, lithography, and by any other means. So guys, why Baba Sahib always cleared everything in this constitution? So why here by any other means was written? Due to because framers of the constitution previously know that as the society will evolved, many things where one can express his views, opinion, or belief will be elaborated and will be diversified. Okay guys, that's why by any other means was written. Okay guys, now I already told you that no fundamental right is absolute right. Okay, absolute right. Here guess what, here we have reasonable restriction guys. Okay, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, प्लीज़ गाइज इसको याद रखना. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होती है, रेस्ट्रिक्शन नहीं कहीं नहीं है हमारे राइट्स में, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. ओके गाइज, सो नाउ here we have 19 subclause 1. Next 19 subclause 2. Now 19 subclause 2 is what? Reasonable restriction on 19 subclause 1 subclause A. So what comes under reasonable restriction? Sovereignty of India should be upheld. Integrity of India should be upheld. That okay. Secondly, security of India shouldn't be threatened. Third, public order, morality shouldn't be compromised. Friendly relation must not be disturbed. Friendly relations with foreign state must not be disturbed by your freedom of speech and expression for obvious. Next, decency, morality, incitement to offense. Incitement to offense means guys that you are not engaged, you are not engaged in you are not helping someone to commit a suicide. You are not encouraging someone to commit a suicide. Okay, so if you are by your word, by your writing, or anything. Okay, so guys, we shift to next page. Here we have
So here it is reasonable classification, but here we have to discuss about what IT Act when IT Act 2000. Okay, yes. So here IT Act 2000, it was amended. It was amended from section 68A of IT Act was added. Okay, guys, was added. And what was written in that section, section 666A? Here written that any person writing offensive can extend jail up to 3 years if insult annoyance is caused. Now one may wonder that, first of all, guys, here we have to remember that law must be clear. Law must be clear. Law must be clearly defined, and these are very vague words. Like what? Guess what? Insult or annoyance by your post. If and now, guys, if like एक एग्जांपल लेते हैं कि मानो मैंने कुछ पोस्ट करा, अब वो पोस्ट किसी को इंसल्ट कर रहा है या किसी को एनॉय कर रहा है, तो ये तो अपनी अलग अलग डेफिनेशन हो जाएगी ना। मानो मैंने ये पोस्ट करा, तो अब ये किसी को इंसल्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये चीज़ तो सबके अलग अलग सब्जेक्टिविटी आ जाएगी ना। सो गाइस, इंसल्ट एनवायंस बट वेग वर्ड होते हैं जिससे सब्जेक्टिविटी आ जाती है। एंड लॉ मस्ट बी रिटन एंड क्लियर। लॉ मस्ट बी क्लियर एंड रिटन। गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ मस्ट बी क्लियर एंड रिटन। like for example कि मानो हाईवे पे you have noticed that speed limit is mentioned. So guess what, if they write कि don't drive fastly, so the definition of fastly will be different for different persons. Maybe for me, fast in fast we comprise of 70 kilometer per hour, but accordingly for a child fastly comprise of 130 kilometer per hour or 140 kilometer per hour. So that's why you will notice that wherever it is written, so speed limit is written like 70 kilometer per hour or anything. Sorry guys. So or 130 kilometer per hour, it is written, it is mentioned कि speed limit 80, speed limit 90, 100 accordingly to the national highway or any highway. Okay, so this is it. So that's why fastly, insult, annoyance, these are very vague words, and these have subjectivity in it, and here the concept is not fulfilled, that law must be clear and written. Okay guys, so next, insult, annoyance, everything like insult, annoyance. Law, it makes law ambiguous, है ना. Arbitrary law must be written and clear. I already told you. So these ambiguity won't be covered in that. Okay guys. Now what happened? Now what happened in 2012? In 2012, Thackeray death happened. Okay, so two girls wrote on social media, so guys, what is here the context? I will only tell you. So guys, please listen carefully. So when Thackeray death was there, so उनका जनाजा निकला, मतलब
उनका निकल रहा था। तो जब वो निकल रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत भीड़ हो गई थी, और वो जो ये जो दो गर्ल्स थी, इन्होंने खाली सोशल मीडिया पे इतना लिखा लिखा था कि हमें जो है ये इसको हम आप कहीं और से शिफ्ट कर दो, बिकॉज हमें देर हो रहा है, बिकॉज दे वर फेसिंग एन एग्ज़ाम, एंड ड्यू टू दैट कंजेशन इन ट्रैफिक दे वर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दैट। ओके, सो फिर क्या हुआ था कि अब जब उन्होंने ऐसा लिख लिख दिया, सो दे वर अरेस्टेड। वाई ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 66 से, कि ये तो आपने इंसल्ट कर दिया ये तो आपने ठाकरे की डेथ को इंसल्ट कर दिया। एंड इट वाज वेरी वेग, बिकॉज उन्होंने तो नहीं ऐसा कुछ लिखा, उन्होंने तो सिंपल लिखा कि जो ये निकल रहा है ये कहीं और से भी निकल सकता है, ताकि हम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दें, जिससे कि लोगों के ज़रूरत की चीज़ें ना रुकें। ओके ओके गाइस, तो ज़रूरत की चीज़ें ना रुकें, इसके लिए आप वो कर दें, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दें। अब ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दें, अब इसमें तो इसने कोई इंसल्ट नहीं करा, लेकिन लोगों ने ऐसा कहा। सो पुलिस केम टू हर हाउस एंड दे वर अरेस्टेड। ओके, एंड दे वर अरेस्टेड, एंड हेयर इन 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज है ओनली रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आर कबल्ड। ओके ओके गाइस, आई एम reasonable restriction. I'm telling you multiple times that reasonable restriction were covered. Reasonable restriction, not only reasonable restriction covered. Up now, insult, annoyance. These are very vague words. So according to these words, if police arrest someone, so it can cause a fear, that when one may wonder that I have to write anything, I have to assess my 19 sub clause 1 sub clause A, freedom of speech and expression or not. If writing only do those two three things that divert the traffic from other road, so that one might not feel congestion in traffic and can go to their work or go to anywhere. So it is very dangerous for us, है ना? So it basically takes us to a doctrine of chilling effect. चिलिंग इफेक्ट। सो गाइज, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट, व्हाट इट इज, it gives us extreme fear, it gives us extreme fear where one stop. सो गाइस, अभी समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए, अब इसमें ऐसा होता है ना कि अब क्या इसको समझाते हैं। जैसे गाइस, मानो आप जंगल में रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और आपके सामने आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो, और आपके सामने एक रैबिट आ जाता है। तो अगर आपके सामने एक रैबिट आ गया और आपने ब्रेक मारा, तो आपने ब्रेक मारा और आप देख रहे हो, और रैबिट आपने ब्रेक मारा तो रैबिट को क्या, और आपकी गाड़ी के सामने से रैबिट क्रॉस कर रहा है। तो एट द टाइम व्हेन यू अप्लाइड ब्रेक, सो व्हाट यू सी कि रैबिट आपकी गाड़ी को देख के इतना डर गया, वो इतना डर गया कि वो उसी जगह स्टक हो गया, वो आपकी गाड़ी के सामने खड़ा खड़ा हुआ है। ही इज़ नॉट मूविंग, बिकॉज मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या क्या करूँ, है ना? ड्यू टू दैट एक्सट्रीम लाइट एमिटेड फ्रॉम योर व्हीकल, है ना? सो उस वजह से वो इतना डर गया कि वो एक जगह खड़ा खड़ा हो गया, और वो खड़ा हो गया, सोच रहा है मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ नहीं जाऊँ। तो दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट। और यही क्रिएट कर दिया गया था जब उन टू गर्ल्स को अरेस्ट करा गया, मेयरली ऑन द बेसिस की देर रोज की यहाँ से भीड़ हो रही है, तो भीड़ की वजह से लोगों के काम रुक रहे हैं, उस वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो उससे लोगों के मन में एक डर आ गया कि भैया डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट, कि अब हम क्या करें, अब हम कितना लिखें, हम लिखें भी या नहीं लिखें। तो ऐसी सिचुएशन में आदमी क्या करता है कि लिखना ही बंद कर देता है। फिर आदमी अपने राइट्स को ऐसे ही करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई अगर मैं कुछ भी लिखूँगा, सो इट विल अनॉय और इंसल्ट एनी वन, एंड आई विल बी अरेस्टेड।
तो आप किसी को इतना नहीं डरा सकते हैं क्या कि वो अपने राइट्स को ऐसे ही ना करे. दैट्स वाई आई एम कंटिन्यूसली एक्टिंग दैट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आर देयर, नॉट रेस्ट्रिक्शन आर देयर कि रेस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड कि यू वोंट बी एसेस, यू वोंट बी एबल टू एसेस योर राइट्स. फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए. ओके, so here we come to next topic. So I already told you to jot it down. Insult definition must be provided. Annoyance definition must be provided by in the law itself, but it was not provided. Okay guys, so here the case became a lawyer called Shreya Singhal took their case. So case ended upon to be an argument against Union of India. So Shreya Singhal versus Union of India, it was against section 66A. It was against section 666A, and Supreme Court decision was, guess what was is it is section 66A of IT Act is ultra virus to Constitution of India, hence declared null and void. ओके है. मतलब फिर जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है, नथिंग डूइंग, हम सेक्शन 66 को अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, और अल्ट्रा वायरस बोलते हैं हम इस पार्ट को निकाल देते हैं इस पूरे लॉ में से. अब दिस ब्रिंग्स टू अ नेक्स्ट थिंग कि हमने पूरा लॉ नहीं हटाया. जैसे हमने IT एक्ट तो बहुत बड़ा था ना, IT एक्ट तो बहुत बड़ा था. हमने पूरा लॉ नहीं हटाया, हमने खाली सेक्शन इस लॉ का एक पार्ट कट करा. हमने इस लॉ का एक पार्ट हटाया. वो पार्ट क्या है? सेक्शन 66 से. सेक्शन 66 से ही हमने रिमूव कर. इसको हम क्या बोलते हैं कि यदि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया जो हमारे रिमेंबर गाइज व्हाट, आप कुछ याद करिए क्योंकि मैंने वो जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी वो देखिए आप, तो उससे आपको समझ में आएगा. उससे आप एक लिंक इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ अभी, वरना आपको समझ में नहीं आने वाला. क्यों? अब इससे क्या था कि हमको ना, अगर मानो इफ़ एनीथिंग विच वायलेट्स, कंट्रावीन और एब्रेजेस आवर फंडामेंटल राइट्स एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, सो दैट लॉ बिकम नल एंड वॉइड. अब ये लॉ भी IT एक्ट भी पार्लियामेंट ने ही बनाया था, लेकिन वो पार्लियामेंट का जो लॉ था वो हमारे फंडामेंटल राइट को एब्रिज कंट्रावीन या फिर नहीं कर रहा था. और जब वो हमारे राइट्स को एब्रिज कंट्रावीन नहीं कर रहा था तो इसलिए सॉरी गाइस, तो इसलिए क्या है ना कि पूरे एक्ट को नहीं हटाया. ओनली सेक्शन 66A ऑफ दिस एक्ट, ओनली सेक्शन 66A ऑफ दिस एक्ट वाज ट्राइंग टू एब्रिज कंट्रावीन our fundamental rights. So that's why only this article was cut from this whole act. Okay guys, so here section 66A of IT Act 2000 has a chilling effect. Chilling effect I previously explained. Chilling effect on Article 19 subclause 1 subclause A. So it is violative of Article 19 subclause 1 subclause A. So this is called what? Doctrine of severability. So here it brings about doctrine of severability. What it is? Doctrine of severability is basically whole law is functional because whole law is not abridging our fundamental right. Only this part section 66(6)A
sever to cut. Okay. Okay. If rest of the law if rest of the law is functional, then and a part of law which is unconstitutional can be severed. Okay, can be severed and cut. Okay guys, then only part which is unconstitutional is severed. Then only part which is unconstitutional, which is declared unconstitutional by Supreme Court or High Court or any court, judiciary, which is unconstitutional is removed. Okay guys, is removed it, and this is only called doctrine of severability. Okay guys, so I hope so कि आपको समझ में आया होगा. ऐसे ही मतलब ये श्रेया सिंघल केस भी मैंने आपको देखो बता दिया. अब इसमें श्रेया सिंघल केस में भी क्या हुआ था ना, श्रेया सिंघल केस में भी ऐसा हुआ था कि जब सेक्शन 66 से अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर कर दिया गया था, तो सेक्शन 66 से एक को रिमूव कर दिया गया था पूरे लॉ में से. इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. और मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट बता दिया कि आप किसी चीज़ को ऐसा नहीं कह सकते कि लोग जो हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो अपने राइट्स को ही एक्सेस करना से डर जाएं बिकॉज ऑफ सच वेग डेफिनेशंस. लाइक अभी जो मैंने आपको बताया कि वो इंसल्ट या फिर एनवायंस वगैरह का था. ठीक है गाइस, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा. इसके बाद हम आते हैं एक और एक्ट पे. सो न्यूज़ प्रिंट पॉलिसी. तो न्यूज़ प्रिंट पॉलिसी 1972-73 में जब इंदिरा गांधी मैडम हमारी पीएम थी, तो ऐसा था कि उनके बारे में ना ये सारे जो न्यूज़पेपर्स थे ये सारे उल्टा बोलते थे, तो उनको पसंद नहीं आता था बिल्कुल भी. सो दे वर लाइक तो शी वाज लाइक कि मुझे इसको कंटेन करना है, लेकिन वो न्यूज़पेपर को कंटेन नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो न्यूज़पेपर चला रहे थे उनको भी तो अपने वर्क्स और अपने स्पीच और एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अपना दिखाना था. तो जब उनको दिखाना था तो वो कंटेन नहीं कर सकती. तो उन्होंने एक दिमाग लगाया. उन्होंने क्या दिमाग लगाया, आप ध्यान से देखिए. उन्होंने ये दिमाग लगाया कि हम क्या करेंगे ना कि हम जो न्यूज़ प्रिंट होता है, एक पेपर होता है, तो बेसिकली दीज वर इम्पोर्टेड एट दैट टाइम. सो दीज वर इम्पोर्टेड एट दैट टाइम फ्रॉम कैनेडा एंड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. सो व्हेन दीज वर इम्पोर्टेड एट दैट टाइम, सो क्या हुआ ना कि जब ये इम्पोर्ट होते थे, सो वी हैव फेस मल्टीपल वॉर्स, है ना. इंडिया फेस मल्टीपल बिफोर दिस 1972. सो कैनेडा. सो न्यूज़ प्रिंट बेसिकली ये एक पेपर होता है, यही पेपर होता है जिसके ऊपर आपका न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, जिसके ऊपर आपके प्रिंटेड चीज़ें लिखी होती हैं. तो इसी पेपर को हम बोलते हैं न्यूज़ प्रिंट. ठीक है, तो न्यूज़ प्रिंट इन 1970 वर हाईली इम्पोर्टेड फ्रॉम कैनेडा. ओके, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं बनते थे, इम्पोर्टेड फ्रॉम कैनेडा विच रिक्वायर्स फॉरेन एक्सचेंज. हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता तब हमको बाहर से मंगाना हो कोई भी सामान. एज इंडिया फेस्ड 3 wars कैन नॉट अलाउ न्यूज़ प्रिंट टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम कैनेडा. सो गाइस, आप समझ रहे हो कि इससे हुआ क्या. इससे ये हुआ कि आप देखिए कि न्यूज़ प्रिंट जो है वो 1970 में पब्लिश होता था. जो उससे पहले पब्लिश होता था, लेकिन न्यूज़पेपर पब्लिश ही कैसे होगा जब हम न्यूज़ प्रिंट जो पेपर्स हैं उसी को हम नहीं लाने देंगे. जब वो पेपर्स ही नहीं आएंगे तो फिर न्यूज़पेपर पब्लिश ही कैसे होगा, नहीं हो पाएगा. तो ये क्या करा, ये इनडायरेक्टली कर्टेल कर दिया मैडम ने, इंदिरा गांधी मैडम ने इसको, हमारे राइट को इनडायरेक्टली कर्टेल कर दिया. और जब इसको इनडायरेक्टली कर्टेल कर दिया तो बेनेट कोलमैन न्यूज़पेपर कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1972. गाइस ईयर को चाहे याद रखना चाहे मत रखना, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, जिसमें ज़रूरी होगा उसमें बता दूंगा. तो बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था
इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस गया तो फिर बेनेट कोलमैन ने बोला, बेनेट कोलमैन वही एक कंपनी है जो न्यूज़पेपर बनाती थी, तो न्यूज़ प्रिंट पेपर्स को वहाँ से इंपोर्ट करती थी। तो इस कंपनी ने जब बोला तो इन्होंने फिर बोला कि हमको हमको सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज contravened, therefore this law will be स्ट्राइक डाउन। ठीक है गाइस, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। और एंड सुप्रीम कोर्ट ब्यूटीफुली से द लाइन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, यू कैन नॉट मैडम, यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली what you are not allowed to do directly, and this is called what, guess what, this you cannot do indirectly। आप वो चीज़ मैडम, आप जब आप न्यूज़पेपर कंटेन नहीं कर पा रही तो आप न्यूज़पेपर को ही, तो आप न्यूज़ प्रिंट पेपर को ही कंटेन कर दे रहे हैं। तो इसके लिए इसको बोला गया था, क्या क्या बोला गया था इसको, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ओके गाइस, सेकंड, here we come to section 124। section 124 सब क्लॉज है। here we have sedition law, which was due to IPC 1816, it is law of crime। नाउ सेक्शन 124 ये कब आया था, 1860 में आया था। कैसे पता है आपको, मॉडर्न इन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया दे डोंट थिंक कि हमारे खिलाफ कोई बोले, सो दैट्स वाई दे implemented this section 124A। after our independence, this law was carried forward from that movement only, from that only। so this was so basically बिफोर दैट ना, आप देखिए कि महात्मा गांधी वगैरह जो लीडर्स थे हमारे, जितने भी जवाहरलाल नेहरू, जो भी हमारे लीडर्स थे, वो यही चाहते थे कि हम तो सजेशन में लाओ भैया हमें, बिकॉज वी विल स्पीक अगेंस्ट यू बिकॉज यू आर रॉन्ग, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश डिपार्टमेंट, यू आर रॉन्ग, यू आर सो इफ़ यू आर रॉन्ग वी विल स्पीक अगेंस्ट यू। तो वो जानबूझ के सजेशन लॉ में आ जाते थे। लेकिन जैसे ही जैसे हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा लॉ बना, तो उसके बाद फिर सजेशन की कोई दिक्कत नहीं है। हमको खाली हम तो इलेक्शंस वी फेस रेगुलर इलेक्शंस टाइम इन अ इंटरवल ना, इन अ फिक्स इंटरवल। तो जब हमको रेगुलर इंटरवल पे एक इलेक्शन मिलता है, तो अगर हमें कोई पार्टी नहीं पसंद आती तो हम उस पार्टी को चेंज कर सकते हैं ड्यू टू आवर इलेक्शन, ड्यू टू आवर वोटिंग राइट। ओके गाइस, सो इसलिए सजेशन लॉ इसके बाद तो कोई काम का ही नहीं रह गया था, तो बटे चले आ रहा था। लेकिन अभी जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो फिर मांगा गया था उनसे, तो फिर जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, उन्होंने कहा था कि डिसेंट इज सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। कि बोलना तो चाहिए, लेकिन अब उस बोलने में फिर आगे जब आया तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको ग्रे एरिया अकॉर्डिंग टू केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एक केस है गायज, ये 1962 का है। इसका ईयर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको यही रखना है कि इसको इस सेक्शन 124 है जो सजेशन है, इसको ग्रे एरिया कहा गया था बाई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फॉर ऑब्वियस इन केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, और फिर ये ऐसे चला हुआ आ रहा था। उसके बाद फिर मोदी गवर्नमेंट goes for re-examination the law, and afterwards this is currently going, and it is not clear that in what way this should be moving। okay guys, so आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ़ आपको अगर कुछ भी समझ में आया है
If you find interested this video in any way, you can like this video, share this video and subscribe my channel, so that as soon as next video come you get the intimation. ओके गाइस, वरना ये चैनल चला जाएगा और फिर आप नहीं देख पाएंगे. ओके गाइस, थैंक यू. साइनिंग ऑफ फ्रॉम दैट वीडियो. बाय.